next point is chemical test for glycosides. Okay, chemical test for glycosides. Now first point is saponin glycosides. Okay, so how to identify the saponin glycosides? There are two tests for identification of the saponin glycosides. First test is shake the powder drug of saponin glycoside or shake the powder crude drug with water. Shake the powder crude drug with water. Formation of the foam indicates that the presence of saponins. Okay, if the foam is formed, the foam is indicate that the saponin glycosides are present in the crude drug. Okay, simply crude drug is add into the water and shake well. After shaking, soap like solution or foam will be created. Foam will be formed. This foam indicates that saponin glycosides are present in the crude drug. Okay. Then second point is drug is treated with blood or drug is added into the blood. The rupture of the RBCs or hemolysis of the RBCs will be take place. Okay. If the rupture of RBCs or hemolysis of the RBCs take place, it indicates that the saponin glycosides are present. Okay. Then second test for cyanophoric glycoside. Cyanophoric glycoside or the crude drug is treated with water and add piece of sodium picrate paper into that solution and tap the test tube from side and allow to stand the test tube for 30 minutes. After 30 minutes, observe the color of the sodium picrate paper. If the picrate paper is brick red in color, it indicates that cyanophoric glycosides are present in that crude drug. Okay. Now third test is for anthraquinone glycosides. Okay, anthraquinone glycosides. The drug is treated with H2SO4 and boil for few minutes and filter after boiling and cool. Okay, in that filtrate add solvent like benzene chloroform or carbon tetrachloride which is insolubilized in water. Okay, water insoluble solvents or organic solvents which are water insoluble will be added into the filtrate and shake well. After that, separate the organic layer and that organic layer add equal amount of ammonia. Like if the organic layer is 5 ml, add 5 ml of ammonia into that solution and observe the color. If color is pink to red, that indicates anthraquinone glycosides are present in that crude drug. Okay. Now fourth test for cardiac glycosides. Okay, the important test for cardiac glycoside or main test for cardiac glycoside is Killer-Killarney test. In this test, the 1 gram of drug is added into the 10 ml of 70% alcohol and boil this solution for 3 minutes. After that, filter this solution and into the filtrate add 5 ml of water and 0.5 ml of lead acetate solution. Okay. Again filter the solution and into the filtrate add equal volume of chloroform. Okay, and evaporate the solution up to get solid extract. Okay, into that extract add few drops of acetic acid and few drops of ferric chloride. Few drops of acetic acid and few drops of ferric chloride solution. And Abu solution means extract dissolve into the
glacial acetic acid, add 2 drops of ferric chloride solution, and into this solution add 2 ml of concentrated sulfuric acid. If the solution gives reddish brown layer, if the solution gives reddish brown color and on standing it convert into the bluish green, it indicates that the cardiac glycosides are present in that crude drug. Okay. These are the tests for identification of the glycosides. Okay. 4 types of tests for 4 types of glycosides. Okay. Now next point is isolation of glycosides. Next point is isolation of glycosides. How to isolate or how to extract the glycoside? First, we will collect the part of the plant which contains the glycosides. Okay. After collection of the part of the plant, dry the parts and powder it, fine powder. Okay. Then powder drug is extracted by using the water or ethanol or alcohol using the Sauerland apparatus method. Sauerland apparatus method. Okay. For in Sauerland apparatus method, heat is used. So thermolabile drugs, for the thermolabile drugs, the care should be taken that for the thermolabile drugs we used the slow heating or low temperature or use low temperature. After extraction of this drug, the non-glycosidal impurities will be separated by using the lead acetate solution. Okay. Some impurities are present in the glycosides which are non-glycosidal impurities, like other chemical constituents which are non-glycosidal class, which are present in that crude drug, which have been removed by using the lead acetate solution. If excess of lead acetate solution will be added into the solution or into the crude drug extract, this extract is passing through the H2S, hydrogen sulfide gas, and excess of the lead acetate will be removed. Okay. Then concentrated extract will be purified by using the suitable techniques like solvent chromatography or any other techniques. Okay. This is the isolation procedure for the this is the isolation procedure for the glycosides. Okay. Then other than chromatography, the suitable methods which have been used to purify the glycosides are based on that chemical nature and properties of the glycosides. Okay. Then next point is fourth point, volatile oils. Okay. Next point हम देखने वाले हैं volatile oils. Okay. We know volatile oils are odorous compounds which having the volatile principle, means the compounds which are evaporate at room temperature considered as volatile principles. Okay. The volatile oils obtained from the plant and animal sources known as the volatile principles or the volatile substances which are obtained from the plant and animal sources are known as volatile oils. Okay. What is the definition for volatile oil? These are the odorous and volatile principles which obtained from the plant and animal sources called as volatile oils. Okay. As they evaporate when exposed to air at ordinary temperature. Okay. They evaporate when exposed to the air or ordinary temperature. Room temperature पे वो क्या होते हैं? Evaporate होते हैं. They are also called as ethereal oils. They are also called as ethereal oil. They represent essence or active constituents of plants. Hence, they are also known as essential oils. Okay. They represent the essence, smell, and
active constituent of the plant. Some active constituents which are present in the volatile oil, that's why it's also called as essential oil. Okay. Then chemically they are derived from terpenes. अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें तो केमिकली दे आर डिराइव फ्रॉम टर्पिन्स. टर्पेनॉइड्स में हमने पढ़ा था टर्पिन्स क्या होते हैं, नथिंग बट द आइसोप्रीन यूनिट्स. ओके. टर्पिन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स नोन एज टर्पेनॉइड्स आर present in the volatile oils. Okay. Volatile oils are made up from isoprene units. Okay. Volatile oils जो होते हैं उसमें isoprene units present होते हैं. 1 isoprene unit, 2 isoprene units या फिर number of isoprene units से क्या बनते हैं, तो volatile oils बनते हैं या फिर terpenoids बनते हैं. Okay. Then chemical or physical properties for the volatile oils. Volatile oils are soluble in alcohol. Volatile oils are soluble in alcohol, ether and other lipid solvents but insolubilized in water. Okay. Volatile oil is solubilized in some solvents like alcohol, ether and lipid solvents, but it is practically insolubilized in water. Water insoluble compound. Okay. They are usually lighter than the water. Okay. Oil है मगर वाटर से कैसा है, लाइट है. वाटर कैसे होता है, हेवी. ओके. दैट्स व्हाई इट इज फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. दे पासेस कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके. दे पासेस थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट स्मेल एंड आल्सो शोज द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके. Then most of them are optically active compounds. Most of the volatile oils are optically active. Okay. Then they secrete in special structures such as ducts, where they secrete, where volatile oils are secreted in the plant, like duct cells. Some cells are responsible to secrete the volatile oils. Schizogenous and lysogenous glands. Some glands also responsible for secretion of the volatile oils, and some trichomes also responsible for secretion of the volatile oils. Okay. There are the major sources of the volatile oils. They are commonly found in the species of Labiati, Rutaceae, Piperaceae, Gingiveraceae, Mitraceae and Lauriaceae. Okay. These are the well-known families which contains the volatile oils in abundant amount. They are present in entire plant and in any part of the plant. Okay. In some drugs, volatile oils present in entire plant. Okay. पूरे plant में present होते हैं. और in some drugs they are present in only any part of the plant. ओके. कुछ पार्ट ऑफ द प्लांट में, जैसे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सीड में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, जिसके सिर्फ लीफ में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है. ओके. तो उसको हम बोलेंगे पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके. नाउ आइसोलेशन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स. कैसे हम वोलेटाइल ऑयल्स को आइसोलेट करेंगे. ओके. आइसोलेशन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स. ओके. तो for the isolation of volatile oils, some methods are used. Like for the extraction, steam distillation method is used. Solvent extraction method is also used. या फिर mechanical means such as Equille method, inflorescence method या फिर inflorescence techniques are used for the extraction of the volatile oils. Okay. First method is hydrodistillation method. First method is hydrodistillation या फिर steam distillation method. In that the drug or part of the plant were collected and distilled with water. Part of the plant were collected and distilled with water or steam. Distilled with water or steam and collect the steam which contains the volatile oils. Okay. This method is mostly used for the herbal drugs but which are not thermolabile drugs. Okay. This method is not used for the thermolabile drugs. Okay. The fresh material is
subjected to hydrodistillation. Okay, for the hydrodistillation only fresh material or the air dried material is used for the extraction, or the air dried material part are extracted by steam distillation method. Okay, फ्रेश, अगर फ्रेश मटेरियल है जैसे लीव्स अभी हमने तोड़ के लाए हैं या फिर फ्लावर्स है जो अभी हमने कलेक्ट किए हैं, उनको हम हाइड्रोडिस्टिलेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर एयर ड्राइड मटेरियल है जो पहले ही हमने ड्राई करके रखा हुआ है, उनको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज स्टीम जो होती है वो जल्दी से पेनेट्रेट करती है किसी भी कंपाउंड में, वो जल्दी से उसको इवापोरेट करती है। ओके, और जो वाटर होता है उनको उस प्लांट के अंदर जाने के लिए टाइम लगता है। ओके, सो हम जो भी ड्राई मटेरियल होगा उसके लिए स्टीम यूज़ करेंगे और जो फ्रेश मटेरियल होगा उसके लिए हम हाइड्रोडिस्टिलेशन या फिर वाटर डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंड मेथड है इफ्लूरेश मेथड। ओके, सेकेंड मेथड इज इफ्लूरेश मेथड। Method is used for the extraction of delicate perfumes. Okay, the fresh flower petals are mechanically sprayed on layer of fatty material. Okay, नीचे फैटी मटेरियल का एक लेयर होता है, बड़े से टब्स होते हैं, उसमें फैटी मटेरियल स्प्रेड किया होता है और उस पर हम जो फ्रेश पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स जो होते हैं, जैसे हमने अभी रोज फ्लावर्स जो है उसको तोड़ा और उसके जो पेटल्स है, फ्रेश पेटल्स जो है उसको हम उस पर स्प्रेड करेंगे। जो भी हमारा फैटी सब्सटेंस का लेयर है उस पर हम वो जो पेटल्स है उनको स्प्रेड कर देंगे मैकेनिकल मीन्स से, हम खुद से उनको स्प्रेड करेंगे और थोड़े दिनों के लिए या फिर थोड़ी देर के लिए उसको इम्बाइब होने के लिए रखेंगे, उसमें स्प्रेड करके रखेंगे। फिर जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जैसे 2 दिन के बाद वो पूरे सूख गए या फिर उसका जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था या फिर जो भी इसेंस था वो उस फैट में चला गया, फिर हम उस पेटल्स को निकाल लेंगे और दूसरे जो फ्रेश पेटल्स होंगे वो उस पर हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। ओके, इन दिस मेथड व्हाट विल डू, the fresh flower petals are mechanically sprayed on the layer of fatty material and allowed to imbibe, and the exhausted petals are replaced by fresh material. Exhausted petals replaced time to time by fresh materials. The process is continuous till the fatty layer is saturated with volatile principle and extracted with lipid solvent. Okay, ये कब तक हम रिप्लेस करेंगे, जब तक वो फैटी लेयर जो है पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हो जाती इस इसेंस से, तब तक हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और जब वो पूरी तरह से हमें लगता है कि अभी ये पूरी तरह से सैचुरेट हो गई है, इसमें बहुत अच्छा स्मेल आने लगा है, बहुत अच्छे से वो पूरे वोलेटाइल प्रिंसिपल्स उसमें आ गए, तब हम उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे लिपिड सॉल्वेंट से। ओके, फिर बाद में जो लिपिड होगा वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और जो इसेंस है वो हम सेपरेट करेंगे। ओके, दिस इज द इफ्लूरेज मेथड, this method called as effleurage method. Okay, now next method is Éculée method. Okay, in the Éculée method is used for the extraction of the citrus oils. Okay, Éculée method कौन से एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, साइट्रस ऑयल्स जो होते हैं उसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। wherein cells in ring are ruptured mechanically, जैसे लेमन है या फिर जो भी साइट्रस फ्रूट्स है उसके जो पिल्स होते हैं उसको हम एक रिंग में उसको फिट करते हैं और उसको रप्चर करते हैं मैकेनिकली, हम खुद से उसको क्या करेंगे, रप्चर करेंगे और वो जो सेल्स है वो उसको रप्चर करके हम उसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने से क्या होगा, वो रप्चर हो चुके हैं सेल्स और हम उसको ट्विस्ट कर रहे हैं तो जो भी ऑयल उसमें होगा वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो हम उसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम उसको रोटेट करेंगे और ट्विस्ट करेंगे, इससे हमें मैकेनिकली या फिर मैन्युअली हम जो भी ऑयल है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या करते हैं Éculée मेथड में, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उसको हम एक रिंग में फिट करते हैं, उसको रप्चर करते हैं, पॉइंटेड कुछ भी प्रोजेक्शन हो उससे हम उसको पॉइंट करेंगे और उसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने से जो भी मटेरियल उसमें होगा या फिर जो भी वोलेटाइल ऑयल उसमें प्रेजेंट होगा वो सब हमें मिल जाएगा। ओके,
This method is called as Ukele method. Now next method is liquid carbon dioxide method. Liquid carbon dioxide method is also used to extract essential oils. This method is also used to extract essential oils when liquefied under pressure act on the solvent. Okay, in this method what will do, the essential oils are liquefied under the pressure. Essential oils or volatile oils liquefied under the pressure by using liquid carbon dioxide and reverse back to the gaseous nature when pressure is reduced. Okay, leaving no residue on the solvent. Okay, जैसे हमारे घर में जो एलपीजी गैस होता है उसमें भी वैसे ही करते हैं, जो भी मटेरियल है उसको कॉम्प्रेस करके रखते हैं, मीन्स वो क्या हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है, और जब हम वो प्रेशर रिड्यूस करते हैं उसके ऊपर का, तब वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन. देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स. Okay, टाइप ऑफ क्लास एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास. ओके, बोर्ड पर हम देख रहे हैं कि एक साइड में हमने टाइप ऑफ क्लास लिखे हुए हैं और एक साइड में एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. ओके, तो कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स में हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो 8 टाइप्स ऑफ क्लासेस है जिसमें हम वोलेटाइल ऑयल्स को क्लासिफाइड करते हैं. ओके, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर है कि कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हमने उसको कैटेगराइज किया है. या फिर फंक्शनल ग्रुप्स, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट क्लास इज हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स. ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं टर्पेंटाइन, ब्लैक पेपर एंड होप्स. ओके, नाउ सेकेंड क्लास इज अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल्स. ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं पेपरमिंट, कार्डेमोम, रोज ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, कोरिएंडर ऑयल एंड यूकैलिप्टस ऑयल. ओके, नाउ थर्ड क्लास है अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स. ओके, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, ईस्टर, कीटोन्स, ऑक्साइड, ये जो भी है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स examples are cinnamon oil, lemon peel oil, orange peel oil, lemon grass oil, bitter almond oil. Okay, now fourth class is ester volatile oils. Okay, examples are Gaultheria, lavender and mustard. Okay, fifth class is ketone volatile oils. Okay, इसके लिए examples हैं caraway oil, spearmint oil, buchu oil and camphor oil. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास इज ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल्स. इसके लिए एग्जांपल्स है टेनोपोडियम, यूकैलिप्टस ऑयल्स. ओके, देन नेक्स्ट इज फेनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल्स. ओके, एग्जांपल है एनिस, फनेल एंड नटमेग ऑयल. ओके, देन लास्ट क्लास इज फिनॉल वोलेटाइल ऑयल्स. एग्जांपल्स आर क्लो, यूजिनॉल, देन थाइम and creosote. Okay, thyme and creosote. These are the classes of the volatile oils with their examples. Okay, now volatile oils कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यूजेस ऑफ द volatile oils. Volatile oils are used as flavoring and perfuming agents. इसेंस जो होते हैं उसमें हम वोलेटाइल ऑयल्स यूज़ करते हैं, जैसे रोज इसेंस होता है, लेमन इसेंस होता है. ओके, तो इसेंस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग के लिए यूज़ करते हैं, एज वेल एज परफ्यूम के लिए यूज़ करते हैं, परफ्यूम एजेंट. ओके, इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस फूड में यूज़ करते हैं. ब्यूरेज, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जैसे रोज शेक वगैरह, तो उसमें हम यूज़ करते हैं. देन कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, रोज वाटर हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स में. ओके, अलॉन्ग विथ दिस यूजेस, और इसके क्या यूजेस है, तो मेडिसिनली अगर हम देखें तो कार्मिनेटिव, अम्बिलीफेरस फ्रूट्स जो होते हैं लाइक सिनेमॉन, तो वो कार्मिनेटिव होते हैं, उसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है.
कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो एंथलमेंटिक्स एक्टिविटी दिखाते हैं, लाइक चिनोपोडियम के जो ऑयल्स होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स, वो एंथलमेंटिक एक्टिविटी शो करते हैं। देन जूनिपर जो है वो डायरेटिक एक्टिविटी शो करता है। देन यूकेलिप्टस जो है उसमें एंटीसेप्टिक एक्टिविटी है। देन विंटरग्रीन जो है उसमें काउंटर इरिटेंट एक्टिविटी है। और क्लो जो है वो लोकल एनेस्थेटिक है। ओके, तो जेटामांसी जो है वो सिडेटिव है। देन टर्पेंटाइन जो है लोकल इरिटेंट है। सिट्रोनेला ऑयल, ओके, तो दीज आर दी थेरापेटिकल यूजेस ऑफ दी सम वोलेटाइल ऑयल्स। ओके, देन सिट्रोनेला ऑयल इज ऑल्सो used as a insect repellent for the plants. Then lemongrass oil is used as a citral extraction. Okay, lemongrass oil जो है वो हम citral extraction के लिए यूज़ करते हैं। Then कुछ ऐसे ऑयल्स भी है जो हम विटामिन सिंथेसिस के लिए, विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। और टर्पीन लेस वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं उसको हम परफ्यूम या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स करके यूज़ करते हैं। ओके, दीज आर द यूजेस ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स। ओके, सम ऑयल्स आर यूज्ड इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एंड सम ऑयल्स हैविंग सम पोटेंट एक्शन या फिर बोल सकते हैं कि थेरापेटिकल एक्शन हैं। ओके, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दी वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या फिर उनके लिए कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ओके, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल्स। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वोलेटाइल ऑयल्स के लिए, टू द थीन सेक्शन ओके ऑफ द ड्रग एडेड टू अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द सुधान रेड 3। जो भी ड्रग है उसका हमें ट्रांसफर सेक्शन लेना है, थीन सेक्शन लेना है और उसको किस में डिप करना है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द सुधान रेड 3। उसमें अगर हम उसको डिप करते हैं तो रेड कलर हमें मिलेगा ऑयल ग्लोबल्स को। उसमें जो भी ऑयल ग्लोबल्स प्रेजेंट होंगे उसमें अगर हमें रेड कलर मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है। ओके, क्या टेस्ट है, to the thin section or transfer section of the drug add alcoholic solution of the Sudan red 3. If red color is obtained, globules indicates the presence of the volatile oil. ये हुई first test, Sudan red 3 test. And second test is to the thin section of the drug add drop of tincture of alkana. ड्रॉप ऑफ टिंचर ऑफ अल्कना, अल्कना पाउडर का जो ड्रॉप है वो हम हमारे थीन सेक्शन पे, ट्रांसफर सेक्शन पे ऐड करते हैं। और अगर रेड कलर उस सेक्शन को आता है, टीएस को आता है, तो हम उसको बोलेंगे कि इसमें वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट टेस्ट में हमने अल्कोहलिक सुदान रेड 3 यूज़ किया और सेकंड टेस्ट में हम अल्कना टिंचर यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ सर्टेन वोलेटाइल ऑयल्स आर लायबल टू deteriorate on keeping. Some volatile oils are deteriorate on keeping. अगर हम उसको बहुत दिनों तक ऐसे ही रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं। The deterioration is accompanied by change in color. डिटोरिएट हो जाते हैं मीन्स क्या होते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे हमें पता है अगर हम ऑयल जो होता है ऑयल को कुछ दिन के लिए रखते हैं तो ऑयल क्या हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, ठीक है, रैंसिड हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ये भी वोलेटाइल ऑयल्स है, इसमें वोलेटाइल प्रिंसिपल्स है, लेकिन ये भी क्या हो सकते हैं, रैंसिड हो सकते हैं या फिर कलर ऑर्डर और टेस्ट जो है इनका वो चेंज हो सकता है। ओके, लेकिन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कैसे, वोलेटाइल ऑयल शुड बी प्रिजर्व प्रॉपरली इन वेल क्लोज्ड एंड वेल फिल्ड कंटेनर एंड अवे फ्रॉम लाइट एंड इन कूल प्लेस। ओके, हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इनकी जो रैंसिडिटी होती है या फिर इनका जो भी डिटोरिएशन होता है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ड्रग्स है या फिर जो भी वोलेटाइल ऑयल्स है उनको हम प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, प्रॉपर प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, तो उनको हम वेल क्लोज कंटेनर में या फिर टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करेंगे और उसको अच्छे से फिल करके कूल प्लेस पे रखेंगे। अवॉइड दी कॉन्टैक्ट विथ लाइट। ओके, लाइट के साथ में जो कॉन्टैक्ट है या फिर टेम्परेचर के साथ में जो कॉन्टैक्ट है उसे हम अवॉइड करेंगे। ओके, दिस इज द स्टोरेज कंडीशन फॉर द वोलेटाइल ऑयल्स। ओके, क्या देखा हमने इसमें,
तो हमने पहले तो देखा कि वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम इथेरल ऑयल भी बोलते हैं, वोलेटाइल ऑयल भी बोलते हैं या फिर इसेंशियल ऑयल्स बोलते हैं। ओके, देन जो वोलेटाइल ऑयल्स होता है उनको हम कैसे आइसोलेट करेंगे, तो आइसोलेशन के यहाँ पे यूजेस दिए हुए, यहाँ पे मेथड्स दिए हुए हैं, या फिर एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। अगर कोई ऑयल हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो उसके लिए 4 मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड, इफ्लोरेज मेथड, यूकिले मेथड एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड मेथड। ओके, देन हमने देखा कि क्लासेस कौन से वोलेटाइल ऑयल को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 8 क्लासेस में उसके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, ओके, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन दी वोलेटाइल ऑयल्स, हम उसको 8 क्लासेस में डिवाइड करते हैं और जो 8 क्लासेस है उसके क्लासेस वाइज एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, देन यूजेस क्या क्या है, तो कुछ इंडस्ट्रीज में इसका यूजेस है, फूड इंडस्ट्री में यूजेस है, देन बिहेवरेज इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फॉर्मुलेशन एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसके यूजेस है, परफ्यूमरी इंडस्ट्री जो है उसमें यूजेस है। देन अदर दैन दिस इसके मेडिसिनल यूजेस भी है कुछ, और कुछ सिंथेसिस में भी ये यूज़ किए जाते हैं, लाइक विटामिन ए सिंथेसिस में हम इसको यूज़ करते हैं, सेटल एक्सट्रैक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं, और जो टर्पिनलेस वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं उसको हम परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं। ओके, देन इसको हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या फिर केमिकल टेस्ट हम उसको बोलेंगे। तो उसमें हमने देखा कि जो ट्रांसफर सेक्शन होता है, ट्रांसफर सेक्शन को अगर हम अल्कोहलिक सुदान रेड के साथ में ट्रीट करेंगे और जो ऑयल ग्लोबल्स है उसको अगर रेड कलर आता है तो हम बोलेंगे कि इसमें वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है। और सेकंड देखा था हमने कि जो अल्कना टिंचर होता है उसको अगर हम हमारे ट्रांसफर सेक्शन पे डालेंगे और उसमें अगर रेड कलर आता है तो हम बोलेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है, वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है। हियर वी एंड दी वोलेटाइल ऑयल्स। ओके, टॉपिक नंबर 4। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिपिड्स, ऑयल्स, फैट्स एंड वैक्सेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।